नमस्कार। आज हम नई शख्सियत से रूबरू होंगे, श्री अरीब अहमद साहब से, जो एसीपी ताज सुरक्षा हैं। आगरा के लिए ताज सुरक्षा बहुत अहम मुद्दा है। एसीपी अरीब अहमद बहुत ही एजुकेटेड हैं। उन्होंने आईआईटी कानपुर से केमिकल इंजीनियरिंग की है और फिर इंडिया के सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस से उन्होंने डेवलपमेंट के ऊपर, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर मास्टर्स किया है। उन्होंने 4 साल नौकरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूरल डिपार्टमेंट में की है और 2018 बैच के पीपीएस हैं और उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट किए हैं अपनी लाइफ में। उसके बारे में आज हम संवाद करेंगे। श्री अरीब, आपका स्वागत है। थैंक यू। ब्रज विजन विद अनिल शर्मा के साथ आप एक बहुत अहम पोजीशन पर हैं, ताज सुरक्षा, जो कि आगरा के लिए, आगरा ही क्या पूरी दुनिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट है। और मैं भी विदेश में ट्रैवल किया तो आगरा से भले ही कोई ना जानता हो, लेकिन मोमेंट यू से ताजमहल, एवरीवन रिकॉग्नाइजेज इट। सो हाउ, क्या चैलेंजेस हैं आपके इस पोजीशन में? ताज सिक्योरिटी काफ़ी वेरिड प्रोफाइल है एज अ पुलिस ऑफिसर मेरे लिए। यहाँ पे मेरे अंडर 2 इम्पॉर्टेंट पुलिस स्टेशंस हैं जी, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ताज सिक्योरिटी, विच लुक्स आफ्टर द सिक्योरिटी ऑफ द ताजमहल। Okay. In case of an emergency, what protocols need to be followed? Okay. Day-to-day security needs of Taj Mahal, as well as looking after and going after illegal activities that are happening around Taj Mahal. ये ताज सिक्योरिटी थाने का काम है। इसके अलावा we have a separate tourism police station. I think which is one of the only one in UP. Yeah, now they have one in Varanasi as well. Okay. But this was the first tourism police station in Uttar Pradesh, and its job is to protect the tourists and look after their interests. Okay. तो आगरा में अगर टूरिस्ट कहीं भी आता है, किसी भी जगह पे है, चाहे वो फतेहपुर सीकरी में है, एतमादौला में है, सिकंदरा में है या किसी बाज़ार में, उसके साथ अगर कोई घटना होती है तो टूरिज़म पुलिस स्टेशन उसको रजिस्टर करता है, उसको इन्वेस्टिगेट करता है। और हमने ऐसे प्रोसेसेस डेवलप किए हैं कि अगर टूरिस्ट फॉरेन कंट्री में भी बिलोंग करता है तब भी उसकी कंप्लेंट लिखी जाए, उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो और उसको प्रॉपर जस्टिस मिले। आपने एक रिसेंटली एक स्विस लेडी के साथ कुछ इंसिडेंट हुआ था, उसके बारे में कुछ आपने कैसे उसको प्रोसेस किया, कैसे इन्वेस्टिगेट किया, एंड हाउ डिड यू एबल टू कैच द पर्सन? राइट, एक स्विस लेडी थी जिनके साथ एक फ्रॉड यहाँ आगरा में हुआ। उन्हें एक शॉप पे ले जाया गया गाइड के थ्रू, जिसमें उन्हें सामान जो कि जिसका बाहर मार्केट में रेट 5000 के आसपास था, वो अराउंड 80,000 में दे दिया गया था। When she went outside and inquired about the actual rates, she got to find out. She came to us, registered her complaint. We have registered the FIR, we have done the investigation, put the charge sheet against the guide, against the owner of the emporium, against the salesman as well, and now it is in the courts. So what are the documents which are required by the tourist to approach tourism thana? We do not require any document, just your identity proof and an application. And that's if, it. They said that certain emporium had cheated, so that is enough. Yes. Or a bill is required to. Yes, that for cheating complaints you need a bill. Okay. You need a proof that the transaction has happened. Okay. Any transaction ID. Okay. But tourists can come to tourism police station for any complaint, not just cheating. Okay. Anything, if they are mishandled, misbehaved, or anything, they can come and tell. So how the process starts? You know how the thana acts when a tourist comes and he says that he's been harassed. So generally, so you accompany the tourist. Your team accompanies the tourist, and then. First of all, we make sure that the tourist is able to communicate well. Generally, foreign tourists have a language barrier. Yeah. So we have certain policemen who know other languages as well. So we employ their help. If there is no one, we employ the help of guides. Okay. Then we ask in detail about the incident. We ask them to put it on paper. We take
the complaint, and then we proceed to the spot. Okay. We do a preliminary inquiry, and if the problem is found to be true, then we register the case as an FIR, and then investigation process starts. As a layman, I would like to ask you कि जब आप इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे होते हैं इंडियन के अगेंस्ट, तो वो आपसे कहता नहीं है कि ये तो फॉरेन टूरिस्ट है, इसके लिए आप क्यों कर रहे हैं? Why you are taking so much of pain? Right. So Agra, in the ecosystem of Agra tourism, there is nobody who looks after the tourists. Okay. Everyone is looking after their own Themselves, interests. Yes. And it is the job of tourism police station to look after the tourists first, because the tourists will go back to their own country and they will talk about Agra and India. Yes. It is our job to bring India into a good light, and we have tried our best to do it. We have done it with many different countries. We have received appreciation letters from many embassies. Yes. Japanese embassies we have Yes. received, Argentina Yeah. tourists and all we have received. So our job is to make sure that they do not go back and curse Yeah. and curse Indian authorities and India. क्या आप सिविलियंस को भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं? कहीं लगता है आपको कि उनको इन्वॉल्व होना चाहिए? Right. First of all, we need civilians here at all the stages. Okay. सबसे पहले जो गाइड्स हैं वो भी सिविलियंस हैं, जिनका हेल्प हम लेते हैं. उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि राइट इन्फॉर्मेशन सबको मिले. वो राइट इन्फॉर्मेशन देने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल सिविल सोसाइटी और सिविलियंस का हो सकता है, ख़ासतौर पे जो टूरिज़्म सेक्टर से इन्वॉल्व हैं, ताकि सबकी फर्स्ट प्रायोरिटी टूरिस्ट का वेलफेयर हो, क्योंकि उससे टूरिज्म सेक्टर में बढ़त होगी, इम्प्रूवमेंट होगा. उससे टूरिज्म सेक्टर पर नहीं होगा. फियर जो टूरिस्ट के मन में डाला जाता है वो भी एक दूर होगा उससे. एब्सोल्युटली. आपने कुछ एक नया एक्सपेरिमेंट किया है अपने पुराने एक्सपीरियंस से. कुछ बच्चों को आपने एक्यूमुलेट किया है और फिर उनको आप एजुकेट कर रहे हैं. उसका व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट and what is the long term purpose for this activity? Right. And you feel that it will be continued later on or it will? ताजमहल पे हमेशा से ये छोटे बच्चे जो आसपास की बस्तियों में रहते थे वो आते हैं और अपना हॉकिंग और वेंडिंग का काम करते हैं. उन्हें उनके पेरेंट्स ही भेजते हैं. सुबह सुबह वो 200 रुपये लेके आ जाते हैं ताजमहल पे. शू कवर्स या छोटे ताजमहल ख़रीद लेते हैं और वो टूरिस्ट को, या वो फॉरेन टूरिस्ट हो या वो डोमेस्टिक टूरिस्ट हो, उनको बेचते हैं थोड़े ज़्यादा प्राइसेस में. बेसिकली इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डिसगाइज्ड बेगरी. क्योंकि उन्हें पैसा इसलिए नहीं मिलता कि वो सामान बेच रहे हैं, उन्हें पैसा इसलिए मिलता है बिकॉज वो बच्चे हैं. और पुअर इंडिया या मतलब क्यूट बॉय के नाम पे उन्हें पैसे मिलते हैं. और मतलब इससे काफ़ी नुकसान उनको होता है जब वो थोड़े भी बड़े होते हैं. उसके बाद वो अपना, क्योंकि बचपन का टाइम वो एजुकेशन का टाइम मिस कर चुके होते हैं, तो फिर उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है. क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ड्रग एडिक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं. तो पुलिस का हमेशा से इन बच्चों के साथ ये रोल रहा है कि इनको आते हैं, इनको भगाया जाता था वहाँ से. इनको कोशिश की जाती थी कि चले जाएं, ये लोग भाग जाते थे आसपास के गार्डन्स, जंगलों में, और उसके बाद पुलिस के जाने के बाद फिर से आके वही काम शुरू करते थे. स्मैक भी इसमें से. राइट. काफ़ी सारे ड्रग्स ये लोग लेते हैं, जैसे ख़ास तौर पे जो सोल्यूशन होता है फुटवेयर वाला, वो स्मेल करते हैं ये लोग. वाइटनर्स को स्मेल करते हैं. तो हमने कोशिश ये की अपने इनिशिएटिव में कि हम इनसे सबसे पहले दोस्ती करें. हम इन्हें ये बताएं कि हमें आप हमारे बच्चे हो. आप ताजमहल पे या कहीं भी अगर कोई भी बच्चा इस तरह की परिस्थिति से जूझ रहा है तो वो पूरी कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, इनसे फ्रेंडशिप करी है. इनके लिए अभी हम 3 दिन वीक में क्लासेस चलाते हैं. ये ट्यूसडे, सैटरडे और संडे को ताज सुरक्षा थाने में ये क्लासेस चलती हैं. साथ ही हम इनको एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं. बड़े बड़े जो आगरा के रिस्पेक्टेबल लोग हैं वो आते हैं, इनसे इंटरेक्ट करते हैं, तो इससे इनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है. They are already very sharp, these kids, because they are street smart actually. Street smart, very very street smart, but they do not have the opportunity to explore their potential more.
और they don't have a right direction to move into it. तो ये कोशिश हम कर रहे हैं अपने यहाँ से। अभी हमने 5 बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराया है जी। और धीरे धीरे अभी हमारे पास टोटल 28 बच्चे हैं, हम उनको धीरे धीरे स्कूलों में एडमिशन कराएंगे। अगर कोई बच्चा स्कूल जाने की स्थिति में नहीं है तो हम उसके लिए NIOS की क्लासेस अपने यहाँ शुरू करेंगे। ओके, नेशनल ओपन स्कूल, राइट। जिसमें जो लॉन्ग टर्म विजन सर आपने पूछा, लॉन्ग टर्म विजन ये है कि ये बच्चे यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि ये ताजमहल के पास हैं, ताजमहल के बच्चे हैं जी जी। अगर इनके घर के पास ताजमहल नहीं होता तो ये यहाँ नहीं होते। आपकी बहुत अच्छी सोच है। तो ये जो एक यहाँ विजन ये है कि एक पाइपलाइन बनाई जाए, इस पाइपलाइन में बच्चे आके एंटर हो जाएं और धीरे धीरे अपने पोटेंशियल और अपने हार्डवर्क के हिसाब से वो टूरिज्म सेक्टर में जितने जॉब्स अवेलेबल हैं उनको धीरे धीरे उसमें सेट हो जाएं। चाहे वो छोटे से छोटा जॉब हो, किसी वेटर का या हॉकर का, जो भी छोटे से छोटा जॉब है उसमें से लेके हाईएस्ट लेवल ऑफ पोजीशन जो अवेलेबल है उनके लिए टूरिज्म सेक्टर में, उसमें फिट हो जाएं, ताकि वो फिर उनका फ्यूचर भी बनेगा और आगरा में जो क्राइम का सिनेरियो है वो भी कम होगा। आपने टिस में मास्टर्स किया रूरल डेवलपमेंट में और आप बस्तर गए जहाँ अमूमन लोग, नॉर्मल लोग नहीं जाना चाहेंगे, मतलब वहाँ बहुत डर लगता है कि नक्सल है और क्या ट्राइबल एरिया है, पता नहीं क्या होगा। तो ये आपके मन में विचार कैसे आया कि इंजीनियरिंग करने के बाद आप टिस जाएं और आप रूरल डेवलपमेंट, टेस्ट करने के बाद ही आपको रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में, इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को आप बताएं। मेरा जो IIT कानपुर में जाने के बाद वहाँ मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मिली वो चॉइस मिली जी। मतलब आई नेवर हैड टू थिंक अबाउट एम्प्लॉयमेंट अगेन, बिकॉज यू गेट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। यस। सो आई डिसाइडेड, आपके गुरु ने लिखा भी है कहीं कि आपको बहुत अच्छा कैरियर बना सकते थे आप, लेकिन आपने ये राइट सर। तो इसमें मैंने ये सोचा कि मैं क्या ऐसी चीज़ है जो मैं लाइफ लॉन्ग करूँगा और बोर नहीं होऊंगा, सेटिस्फाइड रहूँगा अपनी लाइफ से। तो मुझे समझ में आया कि आई एम मोर ऑफ अ सोशल वर्क ओरिएंटेड पर्सन, सो आई माई कॉलिंग लाइज देयर। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इस सेक्टर में जाऊंगा। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी मेरे लिए ओपन थी उस समय, मैंने एग्जाम दिया उसका और आई गॉट सिलेक्टेड देयर। ये टिस के बाद? नहीं, IIT कानपुर के बाद, एंड टिस डिग्री वाज अ पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम। ओके, दैट मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, सो वी वर सेंट टू टिस फॉर ट्रेनिंग and then we were sent doing practical. I didn't knew about this. Right. Okay. Then we were sent to Bastar where we wrote our thesis. Okay. अब मैं एक आपको रोकना चाहूँगा। आपने जब आप पढ़ते थे तो आपने एक गाना लिखा था, खिदमते वतन। सर वो इंस्पिरेशन आपको कैसे मिला? सर जैसे मैंने बताया IIT कानपुर में चॉइसेस और ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हुए एक ऑप्शन ये भी एक्सप्लोर किया कि म्यूज़िक क्लब के साथ जुड़े। थोड़ा सा पोइट्री का शौक हो गया था जो कि अभी भी बरकरार है थोड़ा बहुत। तो धीरे धीरे लिखना शुरू किया। म्यूज़िक क्लब को लिरिसिस्ट की ज़रूरत थी, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, मेरे फ्रेंड्स ही थे सारे। तो आई रोट दिस, बट आई रोट व्हाट आई फेल्ट। आई रोट अबाउट 2-3 लाइन अगर आप। जो ये गाना है खिदमते वतन, ये यूट्यूब पे है। ये इट टॉक्स अबाउट अ चॉइस जो आपको मिलती है लाइफ में कि आप एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ जाएं या फिर पब्लिक सर्विस की तरफ जाएं। खिदमते वतन का मतलब सर्विस ऑफ द नेशन। तो जब भी कभी कोई लाइफ का एग्ज़ाम सामने आता है तो फिर आपके सामने क्या चॉइसेस आती हैं और क्या आपको चूज़ करना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन इस गाने में रिफ्लेक्ट करता है। कुछ 1-2 लाइन अगर वर्ड्स अगर आपको याद। इम्तिहान जिंदगी का सामने खड़ा है, ये चाह मन में कि मैं बन सकूं बड़ा, थी ये आरज़ू माँ के काम आ सकूं, भारत माँ के काम आ सकूं जी। वहशते सनम से तो मैं उम्र भर लड़ा। ओके, ठीक। जुल्फ हो सनम की या हो अश्क मुल्क का, सोचना पड़ेगा इसमें कौन है बड़ा। या सही लिखा है।
सही। आप जब बस्तर में थे तो आप काफ़ी पॉपुलर थे उधर। आपका एक इंसिडेंट है, कोई अनअकाउंटेड विलेज में आप गए मोटरसाइकिल पे और वो मोटरसाइकिल पानी में, व्हाट वाज वो, क्या था वो, मतलब रियली ग्रेट इट रिक्वायर्ड। सर इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ सर। कांगेर वैली नेशनल पार्क बस्तर डिस्ट्रिक्ट का नेशनल पार्क है। उसके वहाँ पे एक जो टॉलेस्ट पीक है उसके ऊपर एक छोटा सा हैमलेट है जिसमें 30 के आसपास घर हैं। ये घर ऐसे हैं कि इनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बार बार डिस्प्लेस करता है बिकॉज दे आर लिविंग इनसाइड अ नेशनल पार्क, और इनको नक्सल्स भी परेशान करते हैं। सो when I was in Bastar, I decided that these are the most vulnerable people. Okay. I need to do something about them. तो I made a team, local civil society की ही टीम थी मेरे साथ, और मैं उनके साथ गया। बाइक से ही जा सकते थे क्योंकि जंगल है, जंगल की रोड्स हैं बहुत ही, मतलब और उस दिन बारिश भी हो गई। बस्तर के जंगलों में बारिश का मतलब है कि नाले उफान पे आ जाते हैं, तो काफ़ी एडवेंचरस रहा। बाइक के पहिए फिसलते हुए गिरते हुए हम लोग अंदर तक पहुँचे। वहाँ गए और लोगों से बात करी। लोगों का जो बेसिक आइडिया वहाँ था, मैंने उनसे पूछा कि मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ, आप ये बताइए कि आपको क्या चाहिए। दे वर लिविंग इन अ नेशनल पार्क एंड दे सेड वी वांट ट्रीज वी वांट बनाना ट्रीज, अच्छा, ओके, एंड पपाया ट्रीज। सो वी मेड अ स्मॉल अरेंजमेंट फॉर देम। उनको बनाना ट्रीज, पपाया ट्रीज, साथ ही इरिगेशन के लिए पंप, ये सब हमने प्रोवाइड किया। उन्होंने वो अपना गार्डन बनाया बहुत अच्छा। साथ ही फिर हमने सोलर लाइट हम बनवा रहे थे, वहाँ पे लाइवलीहुड कॉलेज है ट्रेनिंग करके, तो वो सोलर लाइट्स उनको प्रोवाइड की एंड दे वर रियली वेरी हैप्पी विद दैट एंड आई वाज वेरी सेटिस्फाइड। वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ। आप अभी टच में हैं उनके? जी, गांव का नाम गुड़िया पदर है। हाँ, गुड़िया पदर जी, और उन लोगों से मेरी बात होती रहती है, बट दे आर लिविंग देयर स्ट्रगल, their life is a lot of struggle, still continue, yes, but you made certain happiness to them, that कि आपने trees at my own small levels. Okay. आपने एक वहाँ जब आप बस्तर में थे तो कुछ आपने बाजार भी एग्रीकल्चर कुछ स्टार्ट किया था? राइट सर। यहाँ सर जो मेजर इशू जिस पे मैं काम करता था बस्तर में वो था लाइवलीहुड्स। लाइवलीहुड्स में जब मैंने फार्मर्स से डिस्कशन करना शुरू किया वहाँ, तो फार्मर्स का मेन इशू हमेशा से ये रहता था कि वी डू नॉट गेट राइट प्राइस फॉर आवर प्रोड्यूस। और उसके पीछे जब सप्लाई चेन का एनालिसिस किया गया तो पता चला कि बहुत सारा वेस्टेज है। इसकी वजह से जो प्राइसेस मार्केट में है और जो प्राइसेस फार्मर के हाथ में है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। तो मैंने उन्हीं से पूछा कि व्हाट डू यू वांट। दे सेड हाँ, हम अपना प्रोडक्ट खुद बेचना चाहते हैं। सो मैंने ये कहा कि ठीक है, बेचते हैं लेकिन एक अच्छे लेवल पे बेचेंगे। तो उसमें हमारे डीएम सर थे, श्री अमित कटारिया सर, हु इज़ करेंटली इन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ही इज़ वन ऑफ माई आइडियल्स। ही मोटिवेटेड मी अ लॉट देयर एंड ही गॉट ऑन बोर्ड। ही सेड दैट कि लेट्स डू दिस। सो हमने वहाँ पे 2 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज बनाई जिनको हमने ट्रेन किया प्रोडक्ट बेचने के लिए, पैकेजिंग के लिए, और एक पुराने स्कूल को रीमॉडल करके एक एग्रीकल्चर मार्ट बनाया गया जिसमें ये जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज हैं इनकी मतलब इन्हीं के घरों की महिलाओं का एसएचजी बनाकर उन्हें हैंड ओवर कर दिया गया। और उन्होंने इसको बहुत अच्छे से चलाया विद प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर अकाउंटिंग, सॉफ्टवेयर था इसमें अकाउंटिंग का। बहुत ही अच्छा इन्होंने इनिशिएटिव लिया और इट वाज अप्रिशिएटेड ऑल ओवर छत्तीसगढ़। देन यू आर डूइंग रियली वेल। व्हाट मेड यू मूव टू यूपी एंड अपीयर फॉर पीपीएस? राइट, माय parents came to Bastar. I showed them all the work that I was doing and I was planning to reside back in Bastar only. Okay. But they belong to Prayagraj, Uttar Pradesh, and I am the eldest son. Okay. So they said that why not, you have age, you have talent, why not give another in Uttar Pradesh. Your soil also needs your contribution. Yes. You are very far from us and in case of emergencies you won't be able to reach us. मैंने कहा ठीक है, I'll try once. You are very close to your mother? Yes, very very close. She teaches? She used to have a school. Okay. Right now she is old, so she doesn't teach.
So then you came back to Prayagraj. I came back to Prayagraj and I started preparing. And this PCS 2018 was my first attempt. I gave and I qualified. So I decided, by chance I got police service, and when I thought about it, I thought that this is the best way to do public service, Yes. more than rural development. When you went to training, you were 100 kg and then you Yes. became 70. Yes, And you have another achievement of securing highest marks in Yes. 7 subjects yes. in 20 indoor Yes. subjects. So what are those subjects? These are basically law subjects Okay. and interdepartmental coordination subjects, Okay. or there are subjects related with the management of police stations, forensic sciences. Okay. All these subjects I got. When I got selected in PPS, I decided that I have to do this job. I won't appear for any other exam. Okay. This is my calling now, and I will have to do. So I gave my best in training. Okay. How was your PPS interview when you appeared for civil services, UP civil services? PPS interview was very good. I got a lot of appreciation, but it was centered more around sociology. Okay. Because And, that was your. Yeah, that was my optional, Yes. and it was a really great experience. Not very factual, but mostly based on the thought process, judging the Okay, thought yes. process. I think that is what will help you in your career. Right. And once you qualified for PPS in 2018 batch, when did you join your training? The PPS 2018 batch, the exam year was 2018, Okay. but we joined the academy in June 2021, Okay. and I was in the academy till June 2022, Okay. and thereafter I came to You Agra. got first posting in Agra. Yes. So you were lucky in that yeah, very sense. lucky, very lucky. Or I would say that my hard work in the academy You gave have me an been opportunity. you have been given different in Agra. It looks because of your hard work, because of your experience, you have been given a lot of charges. You are ACP Taj Suraksha, then you are ACP for VIP, then you are ACP for traffic police, and other than that you handle different thanas, which Right, is new is Thana New Agra. Right. Right. It's a widespread in Agra, because I don't Right. think so any ACP is having this much of. Right, sir. Because I'm new, and because new people are more Energetic. and not energetic, inclined to do more work, Okay. and because they have to learn as well. Yes. That is why I have been given these responsibilities, and I'm very grateful for them. And I try to do whatever I can here. And which is a challenging job out of these? So the management of police stations is the supervision of the Yes. police stations is the primary job of an ACP. Okay. So whatever is happening in the police stations, ये किसी भी ACP का पहली जिम्मेदारी होती है कि कोई भी गलत काम, किसी भी होना तरह का चाहिए। क्राइम नहीं होना चाहिए. अगर हो रहा है तो वर्कआउट होना चाहिए. जी. और तो दैट इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी. दैट इज़ the most challenging job, but my profile is unique in a sense that I have a responsibility of Taj Suraksha also, Yes, as I said earlier. which is the most important. In fact, Yes. you are taking care of a monument which is owned by world, Right, not right. only by Agra. Right. It is the most visited Yes, monument of ASI Yes, no, it's in the the most country. visited, one of the most visited monument in the world. in the world, right? Any foreigner who lands in India, he Has to wants to come to, see Agra. He has to visit Agra to see Taj Mahal. Right. So that is obviously my first priority now. And traffic charge is also very important. As you know, Agra Yes. traffic is very Yeah. challenging. So all the charges that I have are challenging, and I try and do whatever I can here. आप गंगा यमुना के शहर से हैं और अभी आप ब्रज क्षेत्र में हैं. आपने ब्रज क्षेत्र को पहले भी देखा होगा.
और आपने ब्रज क्षेत्र को अब ताजमहल सुरक्षा में बहुत अंदर तक देखा कि क्या होता है। आप अपने इमेजिनेशन से क्या विजन है आपका कि ब्रज कैसा होना चाहिए आगे 20 साल 25 साल में? सर यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ब्रज क्षेत्र में दो बहुत ही यूनिक चीज़ें का कॉम्बिनेशन है जी। एक तो जो टूरिज़्म का एंगल है, यहाँ पे रिलीजियस टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, सही कह रहे हैं। विच इज़ मतलब जो डोमेस्टिक टूरिस्ट को ड्राइव करता है और बहुत सारे फॉरेनर्स को भी ड्राइव करता है, और एक बहुत ही यंग पॉपुलेशन है इस एरिया में। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी तरीके से फ्यूचर में पैन आउट हो सकता है इफ़ वी कैन मेक अपॉर्चुनिटीज़ फॉर आवर यंगस्टर्स टू गेट इन्वॉल्व इन द टूरिज्म सेक्टर इन अ लीगल वे, इन अ वेल ट्रेन्ड फैशन। तो वी कैन मेक इट अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, because tourism here has the potential to provide employment to almost everyone. So the demographic dividend that this area has is a demographic dividend. No, Agra's economy is based on tourism only. Right. More than 65% of the earning comes from tourism sector. Right. It can be a auto wala, it can be a hotel, it can be a showroom guy or right. whoever, or a street में जो बेच रहा है सामान, वो भी पोटेंशियल है। राइट। आपने योर लाइफ इज यू हैव रियली प्लान्ड और इट हैपेंड, बट यू रियली स्टिक टू द ग्रिट कि नहीं मेरे को ये करना है। ये एक्सपीरियंस को आप अपने जो यूथ है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी को अगर संवारे या प्लान करे तो कैसे प्लान करे? सबसे पहले तो अपना एनालिसिस करना ज़रूरी है, अपनी स्ट्रेंथ्स का, अपनी वीकनेसेस का, अपनी सिचुएशन का। सर आई विल स्टॉप यू। आप कह रहे हैं कि एनालिसिस करना, पर लोगों ज़्यादातर यूथ को पता ही नहीं है कि वो अपनी स्ट्रेंथ को कैसे एनालिसिस करें, कैसे आइडेंटिफाई करें। आप तो उस एनवायरनमेंट में थे IIT में, यू कुड डू इट, बट जो आज आगरा या ब्रज क्षेत्र के कॉलेज में पढ़ रहा है वो कैसे आइडेंटिफाई करें? सबसे पहले अपने अराउंड देखिए, ऑब्जर्वेशन में फोकस करिए और चीज़ों को सुनने में फोकस करिए। बी मोर परसेप्टिव, थोड़ा अच्छा लिसनर बनने की कोशिश करिए। और जब आसपास आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या चल रहा है समाज में। उसके बाद आपको अपने अंदर देखना है, अपने अंदर देखिए और ये समझिए कि आप क्या हैं और आप क्या करना चाहते हैं अपने जीवन में, जो आपको संतुष्टि प्रदान करेगा, जिससे आप भविष्य में किसी भी प्रकार के ग्लानि, किसी भी प्रकार की गिल्ट आपको नहीं होगी मिस्ड अपॉर्चुनिटी की। जब ये दोनों चीज़ें आप देख लेंगे तब आपको वो रास्ता भी दिखने लगेगा कि मैं ये हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ और मेरे आसपास ये हो रहा है, तो मैं इसको इस तरह से लिंक करूँ। एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे अंदर निराश होने की टेंडेंसी बहुत जल्दी आ जाती है जी। हमारा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, जब हम थक हार के बैठ जाएं तब ये मान लेना चाहिए कि हमारा अभी पोटेंशियल का 20-25% ही खर्च हुआ है। अभी हमें और ज़्यादा पोटेंशियल है हमारे अंदर। और जब ये बात आप ध्यान रखेंगे तो फिर आप उसको फिर से उठेंगे और फिर से हार ना मान के अपने जीवन में संघर्षों में फिर से लग जाएंगे। और मेरी यकीन मानिए, मैंने कोशिश करके देखा, ये बात मतलब हर बार काम आती है कि जो भी आपके जीवन में समस्या है, चैलेंज है, उसको आप अपनी ग्रिड से ओवरकम कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप मैं बताऊं, मैं एकेडमी में, जैसे आपने बताया, मैं जब एकेडमी गया तो मुझे विश्वास नहीं था कि मैं पुलिस विभाग के लायक हूँ, क्योंकि मैं 100 किलो का था और टेंडेंसी रूरल डेवलपमेंट वाली थी, पुलिस वाली टेंडेंसी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि ये एकेडमी के है, यहाँ पे मुझे ट्रेनिंग करनी है और अपना बेस्ट देना है, बाकी एकेडमी के अंत तक मुझे समझ में आ जाएगा कि मैं इस विभाग के लायक हूँ या नहीं। लेकिन रोज़ सुबह उठ के अपना बेस्ट देना है। शुरू में इतना ज़्यादा चैलेंजिंग था, जब फिज़िकल एक्टिविटी की आदत नहीं होती तो वहाँ पे आप दिन में सुबह 1.5 घंटे, शाम को 1.5 घंटे, 3 घंटे तो अलग से मतलब वहाँ क्लासेस के रूप में फ़िटनेस का काम करते हैं। उसके अलावा फिर आई डिसाइडेड टू रन 5 किलोमीटर्स एवरी डे, तो वो मैंने खुद से किया।
अपने से। तो ये शाम होते होते फिर वो निराशा, वो कि भाई इससे कुछ असर पड़ेगा कि नहीं, कुछ होगा या नहीं, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल क्या कह रहा है, क्या एनाटॉमी क्या होती है ह्यूमन बीइंग की, ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। फिर एक फिजिसिस्ट आपको फोरेंसिक रिपोर्ट देता है लिख के, आपको वो समझ में आना चाहिए। आपको साइबर एक्सपर्ट होना चाहिए एक। तो ये बहुत ही टेक्निकल डिपार्टमेंट है और यहाँ एक्सपर्टीज़ की भी बहुत अच्छी संभावना है। तो वो भी मेरा फोकस रहा, मैंने पूरी जी जान लगा के इसमें भी कोशिश की। और जब भी निराशा होती थी मैं सोचता था कि नहीं, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, मैं इसको करूँगा। और भगवान की कृपा से ये संभव हुआ। और इस एफर्ट को समाज भी रिकॉग्नाइज़ करता है जी। तो लोगों ने इसको रिकॉग्नाइज़ भी किया। जैसे एकेडमी में मुझे काफ़ी कई सब्जेक्ट्स में मैंने टॉप किया और उससे मुझे और कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मैं इस विभाग के लिए सूटेबल हूँ और मैं अच्छा कर सकता हूँ। नहीं, आप आगरा में भी अच्छा ही कर रहे हैं। इट इज़ अ क्लियर कि आपको इतने सारे चार्जेस मिले हुए हैं, यू आर डूइंग इट वेरी एफिशिएंटली। हम चर्चा कर रहे थे श्री अरीब अहमद साहब से, जो एसीपी ताज सुरक्षा है और बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आगरा शहर में। धन्यवाद अरीब साहब, आपका समय आपने दिया हमको। हम आशा है हम आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद। हम चर्चा कर रहे हैं श्री अरीब अहमद साहब से, एसीपी ताज सुरक्षा। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद हम दोबारा आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं, हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे श्री अरीब अहमद साहब से, एसीपी ताज सुरक्षा से। धन्यवाद।